Hello students, welcome to my YouTube channel. This is my lecture number 9 on chapter rotational dynamics. And in previous lecture number 8 we have seen the definition and their description of the moment of inertia. Let us recall the concept of moment of inertia because in this lecture we will learn how to determine moment of inertia. We can find moment of inertia by using method of integration. Also we have two principle, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. We will see that two theorem after this lecture. So let us recall moment of inertia means, suppose this is a body which rotates about this axis. This is the axis of rotation. Body is rotating. Actually, this is the axis perpendicular to given plane. This axis is perpendicular to plane and body is rotating like this. You can see here this point lies on the same plane. This upper line lies on the this upper line is outside the plane and this bottom lies inside the plane. A given body is made up from large number of small particles. Suppose these are I have taken some of the particles. We have to consider all the particles. Suppose given body is made up from large number of particles m1, m2, m3, m4 dot up to the mn. All these masses has perpendicular distance from axis of rotation r1, r2, r3, r4, rn, all r1, r2 up to the rn. All these are the perpendicular distance from the axis of rotation. Note down this point, perpendicular distance. We should take perpendicular distance. So here the formula for moment of inertia is I is equal to m1 r1 square m2 r2 square plus all masses mn rn square. That means a product of mass and square of perpendicular distance of the given mass from the axis of rotation and summation of all such products. This is our moment of inertia. So it is clear that to find moment of inertia we want mass as well as perpendicular distance of the mass from the axis of rotation. Here masses are randomly distributed in a given body. So we need to find all the perpendicular distances of all the masses. जितने भी यहाँ पे masses है सभी masses का axis of rotation से perpendicular distance find करना पड़ेगा. उसके बाद में एक calculation करना पड़ेगा, एक calculation करना पड़ेगा, all calculation करके बाद में addition करनी पड़ेगी हमें. So it is very difficult task. So the finally conclusion is we cannot find moment of inertia of a body when theoretically, I am talking about the theoretically. We cannot find moment of inertia of the body theoretically when masses distributed in the given body is random. But if the distribution of mass inside the body is uniform, that means when uniform distribution is there, or sometimes even if there is a non-uniform distribution of masses inside the body, non-uniform distribution, so we can find moment of inertia of such a body by using rules of integration. Actually, how to apply concept of integration, the basic concept of integration is a part of mathematics. So here you will see the concept of integration in mathematics paper 2 in your 12th standard. Okay, so यहाँ पे तो some students may be here which are having bio stream. कोई बच्चे ऐसे कि उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो उनको ऐसे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो उनके लिए स्पेशली मैं थोड़ा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. So here in this topic I am going to explain moment of inertia of thin rod. Thin rod means suppose this is the thin rod. This is the thin rod and given rod is rotating about this axis. This axis is
perpendicular to the length of rod and this axis passes through one end of the length of rod. Suppose a rod is rotating like this. This is the suppose rod and rod is rotating like this. My hand is the axis of rotation. My finger is the axis of rotation. When this rod rotating like this, so this case is exactly similar to this. So actually how many particles are there inside the rod or how many particles are there here? Actually there are infinite number of particles, but listen, I told you we want perpendicular distance of all the particles. यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में जस्ट सी दिस इक्वेशन मैथमेटिकली, अगर यहाँ पे R1, R2, R3, R4, Rn सभी R अगर सेम होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे R1, R2, Rn सभी अगर सेम होते तो हम R का स्क्वायर लिख सकते और बीच में सिर्फ m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn. सो सभी मासेस की एडिशन करने के बाद हमें पूरा मास मिलेगा, पूरा मास मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर. तो उसका मतलब क्या है? अगर सभी पार्टिकल का मास सेम होगा तो उस मास को लेके सभी पार्टिकल का डिस्टेंस सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं? उस डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सभी पार्टिकल का जो मास है उनकी एडिशन कर सकते हैं. बट वी वांट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास, all the masses from the axis of rotation should be same. So for that you can just observe here, suppose that when I draw a single line here, अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी तो क्या होगा? इस सिंगल लाइन पे जितने भी पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल अज्यूम किया, उसके बाद में ए पार्टिकल अज्यूम किया, उसके बाद में ए पार्टिकल अज्यूम किया, दिस पार्टिकल, when you assume any particle along this line, over this line, the perpendicular distance of all this particle from this axis of rotation is same. When you measure, this is the perpendicular distance. This is the perpendicular distance. ये पूरे के पूरे perpendicular distance तो सेम है. अगर इसका मास मैंने m1 लिया, इसका मास m2 लिया, इसका मास m3 लिया, डॉट डॉट सभी मास हम कंसीडर करेंगे mn लिया. So what will be the moment of inertia of this single strip? ये जो सिंगल लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर जितना मास है उस मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड करेंगे. इंटीग्रेशन में सबसे पहली स्टेप यही होती है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे m1, इसका डिस्टेंस है r, सेकंड वाला डिस्टेंस भी r, थर्ड वाला डिस्टेंस भी r. तो हम क्या करेंगे? m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर प्लस अप टू द mn r स्क्वायर. तो यहाँ पे हम r स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn लिखेंगे और r स्क्वायर तो कॉमन लिखेंगे. उसके बाद में एडिशन ऑफ ऑल दिस मासेस. अभी यहाँ पे मैंने जो लाइन अज्यूम की है, द थिकनेस ऑफ लाइन इज वेरी वेरी स्मॉल. एज थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, सो देयर इज अ वेरी स्मॉल मास ऑफ द गिवन लाइन. तो इस लाइन का पूरा मास मतलब समेशन ऑफ ऑल दिस मासेस. सो हम क्या करेंगे? ये पूरा मास यहाँ पे dm अज्यूम करेंगे और जो डिस्टेंस है r स्क्वायर अज्यूम करेंगे. सो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल सिंगल लाइन. ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर इस लाइन को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, अगर हम इस लाइन को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली द गिवन लाइन विल लुक्स लाइक दिस. ये लाइन ऐसे दिखेगी. तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जो पार्टिकल इस तरफ है और जो पार्टिकल अंदर है और जो पार्टिकल बाहर की तरफ है, अभी और पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो अलग होगा. तो हम इसके जैसे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हर एक का डिस्टेंस तो अलग होगा. सो फाइनली द कंक्लूजन इज वी शुड सिलेक्ट स्ट्रिप. ये स्ट्रिप हमें जो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, ये स्ट्रिप बहुत ही स्मॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी. द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप इज अप्रोक्सीमेट, थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट all the particle, all the masses inside the given strips having same perpendicular distance from axis of rotation. हम कैलकुलेशन करने के लिए इंटीग्रेशन में एक टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कंसेप्ट इज हेल्पफुल फॉर द नॉन बायो स्ट्रीम स्टूडेंट्स, नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स. बायो स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए ये कंसेप्ट समझने के लिए ये बात अच्छी है. ओके, तो यहाँ पे हमने अभी क्या डिसाइड किया? हमें एक स्ट्रिप अज्यूम करनी है, तो एक स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे. ओके, सिंगल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के बाद व्हाट विल बी देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसका कुछ तो मास होगा, इसका मास अगर dm होगा और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x अज्यूम करो. सो मास मल्टीप्लाई बाय, यू कैन सी
mass multiplied by square of perpendicular distance is the axis of rotation. So moment of inertia of this small element is their mass multiplied by perpendicular distance का square. So dm multiplied by x square is the moment of inertia of this small slip. अभी हमें यहाँ तक तो क्या मिला है, स्मॉल स्लिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है. हमें क्या करना है, इस कंप्लीट रॉड के अंदर जितने भी ऐसे स्ट्रिप होंगे सभी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा और सभी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद में सभी की एडिशन करनी पड़ेगी. लुक एट द बोर्ड. एक कैलकुलेशन करने के बाद में दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और पार्टिकल का कैलकुलेशन करेंगे और बाद में उनकी एडिशन करनी पड़ेगी. सो दिस इज आवर बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो उसके बाद फाइनली आई एम टेलिंग यू how we solve the concept of how we solve the problem of integration. इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम पहले स्मॉल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अज्यूम करते हैं. स्मॉल मास का, स्मॉल मास के लिए, स्मॉल पार्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. इट लुक्स लाइक यस. ये इंग्लिश में यस लेटर ऐसा होता है, तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल यस जैसा दिखता है, तो यस का मतलब होता है समेशन. दैट मींस इंटीग्रेशन इज एक्चुअली समेशन. इंटीग्रेशन तो एक्चुअली क्या होती है, समेशन होती है. तो हमें भी यहाँ पे सभी जो स्ट्रिप है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन ही करना है ना. तो एक जो स्ट्रिप है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था, उसके पास वाली जो स्ट्रिप होगी, अभी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिप, नाउ दिस इज द सेकंड स्ट्रिप. सेकंड स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो अलग होगी. एक्चुअली सेकंड स्ट्रिप का मास भी हम सेम ही लेंगे क्योंकि वी विल सिलेक्ट ऑल आइडेंटिकल स्ट्रिप. हम ऑल आइडेंटिकल स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे तो सभी स्ट्रिप का मास सेम आएगा. मगर यहाँ पे वैल्यू गोस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. यहाँ से यहाँ तक हम जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी. x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, उस स्ट्रिप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर होगा और बाद में ऐसे सभी वैल्यू की हमें एडिशन करनी है. सो आई एम राइटिंग दैट एक्सप्रेशन mathematically here. So finally again I am drawing the figure and I am writing here now. See, this was our basic strip. This was the axis of rotation we have considered. This is the strip. What is their thickness? Their thickness is very very small. dx. एक बात याद रखो, अगर हम कोई से भी वेरिएबल को स्मॉल डी कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब वो वैल्यू बहुत ही छोटी होती है. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग, मैथमेटिकल डी का मीनिंग यही होता है. द गिवन थिकनेस इज वेरी 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 स्मॉल. इतनी स्मॉल है मगर आपको दिखने के लिए मैंने जरा वो लार्ज थिकनेस निकाली, याद रखो. और इसका, इस स्ट्रिप का, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो x होगा. हमें क्या करना है, इस पॉइंट से यहाँ तक एंड तक जितने स्ट्रिप है ऑल स्ट्रिप हमें अज्यूम करने. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा x is equal to 0 to x is equal to l. What is l? l is the complete length of the rod. x equal to 0 से लेकर x is equal to l तक. Here x is the variable. Remember this. यहाँ पे अगर हम नई नई स्ट्रिप ले लेंगे, पहले स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, बाद में दूसरे का फाइंड करेंगे, उसके बाद में तीसरे का फाइंड करेंगे, उसके बाद में चौथे का फाइंड करेंगे. एक्चुअली हाउ मेनी स्ट्रिप्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ना. हमें ऑल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उनकी एडिशन करनी है. तो हम वो एडिशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इस सिंगल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय when we get equation so that given equation is integrable. इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली कौन से फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं. अभी एक्चुअली इट इज द कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स. यू विल लर्न दिस कांसेप्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और बेसिक इंटीग्रेशन टॉपिक. इंटीग्रेशन में आपको समझ में आएगा कि कौन से फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं और कौन से फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होते हैं. तो अभी फिलहाल आपको एक कंसेप्ट समझने के लिए, जो जस्ट समझने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ. और ट्रिक ऐसी है कि इसमें हमें जो इक्वेशन मिलेगा उस पूरे इक्वेशन का कन्वर्जन हमें सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएबल में करना है. अगर ऐसा इक्वेशन हम बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे. लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप. फॉर दैट वी हैव टू अज्यूम लेट l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिप, सॉरी लेंथ ऑफ रॉड. m is equal to their mass, इसका mass of rod. So here
व्हाट विल बी m अपॉन n? m अपॉन n क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज मास पर यूनिट लेंथ। देखो तो यहाँ पे अगर लेंथ वाइज देयर मास विल बी इंक्रीजिंग हियर, लेंथ वाइज मास बढ़ते जाएगा, तो इस थिकनेस का अगर हमें मास, इस स्मॉल लेंथ का अगर मास फाइंड करना है तो मास पर यूनिट लेंथ को अगर हमने उस पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो इस पर्टिकुलर लेंथ का मास मिलेगा। सो व्हाट विल बी देयर मास? इसका मास होगा dm। सो देयर मास विल बी, मास कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली मास पर यूनिट लेंथ को अगर हम उसके लेंथ से, उस स्ट्रिप के लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? उस स्ट्रिप का मास मिलेगा ना। सो राइट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई एम राइटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल बॉडी। सो आई एम राइटिंग हियर moment of inertia of small strip. Small strip means it is a small element here. Moment of inertia, symbol for moment of inertia is I, but here I have taken small strip, so their moment of inertia should be small. So symbol for their moment of inertia is di. Just I told you, अगर हमने उसको डिकनेक्ट कर दिया तो उसका मतलब बहुत ही छोटा होता है। हमने यहाँ पे स्ट्रिप अज्यूम करते, कितने अज्यूम की थी? स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम की थी, तो उसका मास भी कम होगा, उसका मास कम होगा, उसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड di साइन हियर, di सिंबल हियर। सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज द मास ऑफ स्ट्रिप? स्ट्रिप का मास तो dm है और उस dm का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x है। सो x स्क्वायर चाहिए हमें, वी वांट स्क्वायर हियर। ओके, सो this is the moment of inertia of small strip. After that, mass multiplied by square of perpendicular distance. So I am writing di is equal to this. So we have completed, we got the moment of inertia of this small strip. अभी हमें क्या करना है? जितने भी x is equal to 0 to x is equal to l तक जितने भी यहाँ पे स्ट्रिप है, सभी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके उनकी एडिशन करनी है। सो वी कैन ऐड देम बाय यूजिंग इंटीग्रेशन रूल। सो फाइनली आई एम राइटिंग देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सर्टेन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस I is equal to समेशन ऑफ ऑल di। जितने भी di होंगे ना, जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट का जो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम di बोलेंगे। तो सभी di की हमें एडिशन करनी है। कहां से कहां तक? फ्रॉम x is equal to 0 से x is equal to l तक। These are the limiting values. So you can take limit x is equal to 0 to x is equal to l. Okay. So I am writing here from x is equal to 0 to x is equal to l. What is the di? Value of di? Di की वैल्यू क्या है? di की वैल्यू है dm. Here also we can write up. We got the mass of dm now, so we can put the value of mass of dm here. So what is there? M upon L into dx, and also x square is there. I have just substituted value of dm here. So put the value. What is the di? Di की वैल्यू क्या है? M upon L into x square into dx. यहाँ पे एक बात याद रखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का साइन कैसे यूज करते हैं? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx फंक्शन बीच में होता है, याद रखो। This is the symbol integration with respect to dx. That means here x is the variable. x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे f of x की वैल्यू चेंज होती है, और चेंज होने के बाद हम सभी के क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी कोई फंक्शन होता है इंटीग्रेशन और dx इसके बीच में हम लिखते हैं। और एक बात याद रखो, एडिशन एट द टाइम ऑफ एडिशन, एट द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट, इन एवरी केस वी टेक कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर साइन। तो यहाँ पे भी जो भी कुछ वैल्यू कांस्टेंट होगी उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे। सो हियर वी कैन राइट व्हाट इज देयर m अपॉन l इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर इनटू dx। ओके, अब अभी हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इनटू dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे c लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन वी डू नॉट राइट कांस्टेंट वैल्यू। यू विल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट इन मैथमेटिक्स। सो x की जो भी पावर होगी उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? उस पावर में एक ऐड करना है। तो यहाँ पे x की व्हाट इज द पावर ऑफ 2 है, तो हम क्या करेंगे? m अपॉन l। एट द सेम टाइम आई एम
teaching you this derivation, but at the same time you have to understand all the concept related with the integration also. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक बार हमने लिख दिया, सो वी राइट दैट आंसर इन स्क्वायर ब्रैकेट. हम आंसर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करते. सो व्हाट इज देयर आंसर? पावर एक से बढ़ाएंगे, सो पावर ऑफ x इज 2, सो देयर शुड बी x³ अपॉन 3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर लिखो और उसके बाद में लिमिट लिखो. वी शुड राइट लिमिट हियर एंड हियर. दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट. Upper limit is x is equal to 0, lower limit is x equal to 0, upper limit is here. This is the lower limit, this is the upper limit. तो इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो भी कोई वेरिएबल है, इंस्टेड ऑफ दैट वेरिएबल हम फर्स्ट अपर लिमिट पुट करते, बाद में माइनस साइन देते और उसके बाद में हम लोअर लिमिट पुट करते. So I am writing it now here m upon here. First put upper limit, x is our variable, x के जगह पे हमें ये लिखना है. So there is m³ upon 3 माइनस, बाद में x के जगह पे 0 लिखना है. तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, so 0 upon anything will be 0. So this answer will be 0. So what we got? We got m upon l multiply by m³ upon 3 ना. ये l कट, एक l तो कट हो जाएगा. तो हमें फाइनली फॉर्मूला मिला है I is equal to ml square upon 3. This is the formula of moment of inertia of the given rod when that rod rotates about an axis perpendicular to their length and passes through any object on it. So I have completed this topic integration by moment of inertia by using integration. एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या था, अगर just try to compare another situation with this. So I am showing here, अगर हमारे पास ऐसी बॉडी होगी और एक्सिस ऑफ रोटेशन ए होगा, इसके जैसा अगर हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे अज्यूम कर दी, यू कैन सी हियर, अगर यहाँ पे मास तो कैसे भी रैंडमली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके जैसा मास लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है. तो एक तो बात क्लियर है, इस स्ट्रिप के बाद में अगर हम ए वाली स्ट्रिप अज्यूम करेंगे तो इस स्ट्रिप का डिस्टेंस जो है x होगा, इस स्ट्रिप का डिस्टेंस तो अलग अलग होगा और मास भी डिफरेंट होगा ना. तो यहाँ पे x भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और साइमल्टेनियसली उसका मास भी चेंज हो रहा है. सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड देयर आंसर, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड गिवन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ इंटीग्रेशन. So if the mass distribution inside the body is random, then we cannot find their moment of inertia by using rules of integration. Remember this. We can find moment of inertia of such a body by experimentally, practically we can find their value, but we cannot find their value theoretically. Understood? Also, we have some concept parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, with the help of which we can find some their particular value. अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, तो आपके समझ में ऐसे हो सकता है, आपको ऐसे भी लगेगा. तो इसका मतलब यही होगा कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. इवन इफ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. जैसे कि अगेन I am drawing another figure here. अगर यहाँ पे सोचो बॉडी का शेप ऐसा है, दिस इज द शेप ऑफ द बॉडी like triangular shape and the masses distribution is like this. Mass is distributed along here and given body is rotating about this axis. This axis passes through one of the vertex of the triangle. You can observe here, यहाँ पे अगर आपने जिस स्ट्रिप को अज्यूम किया उसके बाद में ए वाली स्ट्रिप को अज्यूम किया, दो स्ट्रिप अब यहाँ पे हमने अज्यूम किए. डिस्टेंस तो ऑब्वियसली when you move from this point to this point, एक तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, उसके लिए तो हम x को वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन में. और साइमल्टेनियसली अगर मास भी चेंज होगा, साइमल्टेनियसली दो वैल्यू चेंज होगी, तो ये डिफिकल्ट होगा ना. मगर अगर when we are able to convert that particular masses in term of x मतलब in terms of single variable, यहाँ पे तो ये बात क्लियर है. हम जैसे जैसे आउटवर्ड की तरफ कुछ तरफ मूव हो रहे हैं, वैसे वैसे इसका मास तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, मगर उसके लिए कुछ तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन के कुछ तो उसमें एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन बनेगा. तो विद हेल्प ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल रिलेशन, यहाँ पे तो ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि डायग्राम तो कैसे भी इरेगुलर डायग्राम, रैंडम डायग्राम यहाँ पे बनाई है. यहाँ पे तो ट्रायंगल जैसे डायग्राम है, ट्रायंगल में वी कैन यूज सम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट
with some geometrical formulae and with the help of which we can convert these masses in terms of single variable. Finally, my statement is, when you are able to convert given problem, given situation, so that we will convert that whole part in single variable only, then we can find their moment of inertia by using integration. तो यहाँ पे हमें बुक में क्या स्टेटमेंट दिया है, अगर जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन इंटीग्रेबल होता है तो इंटीग्रेबल होता है या नहीं होता आपको तो ठीक से समझ में नहीं आएगा. उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन कंसेप्ट पूरा समझ के लेना पड़ेगा. तो आपको शॉर्टकट में, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको शॉर्टकट में समझने के लिए एक कंडीशन, अभी जो मैंने एक ट्रिक बताई है, ट्रिक सफिशिएंट है. अगर यहाँ पे मास, यहाँ पे तो मास हमने आइडेंटिकल स्ट्रिप अज्यूम की थी, यहाँ पे तो सभी का मास सेम था. यहाँ पे मास बढ़ते जाएगा, मगर मास बढ़ते भी जाएगा तो एक तो यहाँ पे कौन सा तो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन से हम उस मास का कन्वर्जन डिस्टेंस के साथ में कुछ तो करेंगे, सो दैट वी विल कन्वर्ट दैट मास इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, so that we will convert whole equation in terms of single variable. That means we can convert given equation so as it is integrable. Then we can solve problem of it. Finally, border line, यहाँ पे हमारे पास conclusion के लिए क्या है, if the uniform distribution of mass is there inside the body and given function is integrable, then we can find the moment of inertia by using rules of integration. If mass distribution is randomly like this, अगर यहाँ कुछ बॉडी के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडमली होता है तो हमें इंटीग्रेशन से ऐसे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को नहीं आएगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, so this point is completed. So this lecture is over. In next video number 10 I will take moment of inertia of the same rod about an axis passing through their center, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं करूंगा. तो किसी भी हालत में आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू हैव टू वॉच वीडियो नंबर 10, लेक्चर नंबर 10, क्योंकि उसमें आपको और कंसेप्ट ज्यादा ठीक से समझ में आएगा. सो आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel. For any doubts you can ask that doubt in comment box. So